23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ नहीं की, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने थोड़ा ये मोमेंट चलने दी। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਨਸਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੀਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। जजों पे प्रेशर पूरा था और कुछ जजों में डर भी था। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰਨ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ? 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? सर, ये बात ठीक है कि इमरजेंसी को लगे हुए 50 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 50 वर्ष पहले वो जो 1.5 साल का खंड काल था, जून 1975 से लेकर फरवरी मार्च 1977 तक जब लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस हुए थे, वो इतना काला अध्याय था और इतने डरावने दिन थे कि उसकी याद आज भी मस्तिष्क पर ताज़ा है। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। बहुत सारी घटनाएं याद करके वो लेते हैं। पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 1971-72 में बांग्लादेश की लड़ाई के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत भारी बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीती। फिर उन्होंने विधानसभाओं को चुनाव करवाए और विधानसभाओं में भी श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी बहुत अच्छी तरह से जीती। 72 में विधानसभाओं के चुनाव हुए तो आगे चलते 73, 74 आते आते 75 तक श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रही थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, महंगाई रोकने का, भ्रष्टाचार रोकने का, वो नहीं हो पा रहा था। तो जिसके कारण कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी मांग उठने लगी कि आप अपने वायदे पूरे करें। कांग्रेस के अंदर चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामधन, ये लोग अंदर की लड़ाई लड़ रहे थे और बाहर जयप्रकाश नारायण जी, कांग्रेस हो, मोरारजी भाई, जनसंघ उस समय होती थी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, ये लोग मांग कर रहे थे कि आप अपने वायदे पूरे करें। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन बना। गुजरात में, बिहार में भारी तादाद में सारे देश में छात्र उनके साथ आए। मैं भी उस छात्र आंदोलन में इन्वॉल्व था। 1974 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। 1974 में 22 साल की उम्र में, और वो आंदोलन तेजी से चल रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रही थी।
आंदोलन चरम सीमा पर था। इसी दौरान 12 जून 1975 को एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीती थी 1971 में। उनके चुनाव को स्वर्गीय राजनारायण जी ने चुनौती दी थी कि इंदिरा गांधी जी ने भ्रष्ट आचरण अपनाए हैं। हेराफेरी की थी। हाँ, भ्रष्ट आचरण अपनाए हैं। ओके। उनके एक पीए होते थे यशपाल कपूर, जो कि सरकारी मुलाजिम थे। कोई भी लोकसभा विधानसभा का उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी से मदद नहीं ले सकता है। यशपाल कपूर ने खुलकर उनके चुनाव में मदद की थी, इंदिरा गांधी जी की। इसी आधार पर उनका चुनाव रद्द हुआ। तो 12 जून को यह निर्णय आया 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। तो जब ये निर्णय आया तो सारे देश का माहौल बदल गया। कांग्रेस के अंदर भी लोगों ने कहा कि अब तो हाईकोर्ट का निर्णय आपके खिलाफ हो गया, आप त्यागपत्र दीजिए। हाईकोर्ट ने इलेक्शन रद्द कर देता सीगा शायद। इलेक्शन रद्द किया, और जब किसी का इलेक्शन रद्द हो जाता है तो फिर उसको त्यागपत्र देना होता है। ये लॉ है, ये कानून है, ये परंपरा है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने त्यागपत्र देने की बजाय, उनको लगा कि अगर मैं त्यागपत्र दे दूंगी तो दोबारा गद्दी मिले ना मिले, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे दिया उनको। तो 1975 की 25 जून और 26 जून की रात को जब उन्होंने देखा कि अब सरकार चलानी मुश्किल है, देश में विद्रोह हो रहा है, लोग साथ नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने रात को देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। और ये कहा जाता है कि उन्होंने इमरजेंसी श्री एस रे के कहने पर लगाई। उन्होंने बताया कि ये संविधान की धारा है जिसके अंतर्गत आप लगा सकते हैं। एस रे कौन सी? एस रे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर होते थे, जो बाद में पंजाब के राज्यपाल भी रहे। एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे वेस्ट बंगाल से। अच्छा। तो उनकी राय पे, वो समय केंद्र में मंत्री थे, तो उनकी राय पर उन्होंने लगाई। एमरजेंसी बेसिकली इंदिरा गांधी ਨੂੰ एक एस्केप रूट ਦੱਸਿਆ गया। एस्केप रूट नहीं, मैं कहूँगा कि जान बची और लाखों पाए वाली बात थी। जाना पड़ रहा था उनको। और मैं आज भी जानता हूँ, कहता हूँ मैं ये, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी एमरजेंसी लगाने की बजाय त्यागपत्र दे देती तो श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनको उनका पूरा नाम था, इतिहास में अमर हो जाती। सत्ता तो आने जानी चीज़ है, सत्ता का तो कोई वो नहीं होता, लेकिन उन्होंने लगा दी एमरजेंसी लगाने का जो निर्णय है संविधान के अनुसार वो कैबिनेट कर सकती है, खाली प्रधानमंत्री नहीं। इस केस में इंदिरा जी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाई कि कहीं मेरी कैबिनेट में ही मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना हो जाए, मैं क्या करूंगी। इसका मतलब पूरी कांग्रेस एमरजेंसी के हक च नहीं थी, नहीं, डर था उनको। तो उन्होंने रात को 12 बजे जाके फखरुद्दीन अली अहमद जी को, जो राष्ट्रपति थे उस समय, जगाया। एमरजेंसी की सिफारिश लेकर गई थी, उस पर उनके हस्ताक्षर करवाए, और रात के सुबह से गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अडवाणी जी और अटल जी बेंगलोर एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में गए हुए थे, उनको वहाँ अरेस्ट किया गया। उसके अलावा बाकी लीडर जहाँ जहाँ भी थे सब जगह उनको गिरफ्तार करना शुरू हो गया। और 26 जून के दोपहर तक आते आते सेंसरशिप लग गई। कोई अखबारों में न्यूज़ नहीं छप सकती थी, रेडियो पे सेंसरशिप आ गई, अखबारों पे, न्यूज़पेपर्स पे, सब पे सेंसरशिप आके, और 26 जनवरी तक लोग गिरफ्तार हो गए। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, SMS नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होते थे, मेल नहीं होती थी। तो 26 दोपहर तक फिर जब सारी बात समझ में आई तो फिर लोगों ने लैंडलाइन पे फ़ोन करने शुरू किए सारे देश भर में नेताओं को कि इमरजेंसी लगा दी गई है, लोगों को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। मीडिया सेंसरशिप की वजह नाल लोगों को पता ही नहीं लगा भी लग चुकी है इमरजेंसी। कुछ नहीं पता लगा, उसके बाद फ़ोन करके दस्या गया, फ़ोन करके बताया गया। और सब प्रमुख नेताओं को जो नहीं पकड़े गए थे उस समय तक, उनको कहा गया कि आप अपनी इधर उधर हो जाइए, गिरफ्तारी मत दीजिए, बाकी जो करना होगा बाद में देखेंगे। और बहुत सारे नेता ऐसे थे जो फिर इधर उधर हुए। मुझे याद है श्री यज्ञदत्त शर्मा उस दिन 24 की रात को चंडीगढ़ में थे। उस दिन यहाँ जलसा हुआ, जनसभा हुई। जनसभा 12 बजे समाप्त हुई। वो जहाँ लेटे थे तो सुबह मैसेज आया कि इमरजेंसी लग गई है, गिरफ्तारी से बचिए। तो उनको फिर एक ट्रक में, कोई दिल्ली ट्रक जा रहा था सामान लेकर, तो वो पंजाबी थे, उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि ट्रक वालों के पास एक पीछे अंदर एक ऊपर जगह होती है, जिसमें वो उनका जो क्लीनर वगैरह है वो सो के जाते हैं, लेट के जाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पंजाबी वो पटका ला दो और मैं वहाँ लेट के जाऊँगा। तो वो उस पर लेट के सो के यहाँ से दिल्ली ट्रेवल करके गए रात को, तब जो बचे। बाद में खैर गिरफ्तार हुए, दूसरी बात है वो। तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई और सारे देश में फिर ये काम चला। उसके बाद कुछ देर के बाद मेरी 12 जुलाई को पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ में अप्लाई किया हुआ था एडमिशन के लिए। मेरा नंबर था मेरिट लिस्ट में, मेरी एडमिशन होनी थी। तो जब मैं एडमिशन, एक साइड ਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੀਡਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ इमीडिएट माहौल किमें सी इमरजेंसी की जानकारी तो बाद? उन दिनों यूनिवर्सिटी में जून के महीने में आमतौर पर छुट्टियां होती हैं, अच्छा, तो बहुत कम स्टूडेंट आते थे, छुट्टियों की वजह से वेकेशन से लोग गए हुए थे। लेकिन 26 जून को दोपहर तक मालूम हो गया था एक दूसरे से चर्चा करते हुए अच्छा, कि इमरजेंसी लगी है, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी जी ने एक नेशन के नाम संदेश दिया था, जिसमें कहा था कि देश में आपात स्थिति लगा दी गई है, हम देख रहे हैं कि जो लोग जेल में हैं वो ठीक से रहें, ये करें। तो रेडियो से ये न्यूज़ तो आई थी कि हाँ, इमरजेंसी लगी है, हाँ, पर क्या हुआ है वो नहीं बता रहे थे। हाँ, तो ये बात चल पड़ी। तो जो राजनीतिक विचारधारा के छात्र थे, चाहे सीपीएम के, चाहे जनसंघ से जुड़े, चाहे बाकी पार्टियों से जुड़े, उन सब में क्रोध था। लेकिन पहली इंस्ट्रक्शन आ गई थी कि कोशिश करो कि आप गिरफ्तार ना हो। ये सब अपने अपने दाएं बाएं हो गए थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ इंस्ट्रक्शन हाँ, आई? मैंने इंस्ट्रक्शन आ गई थी दिल्ली से, फ़ोन आया चंडीगढ़, कोई सज्जन लैंडलाइन पे फ़ोन रिसीव करके मुझे आगे बता गए थे कि भी अभी अब गिरफ्तारी अवॉइड करिए। पर 12 जुलाई को लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए इंटरव्यू था मेरा। मैं एडमिशन लेने गया और जब मैं अंदर गया, मेरिट पे मेरा नाम था, तो चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हमें तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई, आपको एडमिशन नहीं देना। मैंने कहा क्यों? तो बोला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब हम मजबूर हैं, हम क्या करें हम। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाहर आया तो बाहर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, अच्छा, और गिरफ्तार करके उसी दिन दोपहर को पहले सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन लेकर गए, और फिर उसके बाद अगले दिन अदालत में प्रोड्यूस किया, और मैं बुड़ैल जेल में नेक्स्ट डे शाम को पहुंच गया। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? उस वेले मेरी एज थी 23 साल, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP हाँ, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और मैं स्टूडेंट काउंसिल का चुना हुआ जनरल सेक्रेटरी था उस समय, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। हम्म, तो चले गए हम। तो मेरे पे उन्होंने केस बनाया कि मैंने, जब मैं एडमिशन लेने गया था, तो मैंने बाहर लॉ डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी स्टूडेंट रैली को एड्रेस किया, और उसमें एड्रेस करते हुए मैंने कहा कि हम इंदिरा गांधी की सरकार को उल्टा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारा उन्होंने झूठा मोटा केस बनाया। अच्छा, एक टाउट होता था नए ग्राउंड का कोई, जो यही काम करता था। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੀਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਸੀ। 3 तरह के केस थे। कुछ लोग ਇਹ ਥੋੜਾ थे, ਦੱਸੋ। हाँ, 3 तरह के केस बने थे। कुछ लोगों पे तो मीसा लगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता जयप्रकाश नारायण जी, अडवाणी जी, अटल जी, देवीलाल जी, बादल साहब, इन सब पे तो मीसा लगा था, सीधे मीसा लग के अंदर डाल दिया। दूसरा उससे नंबर पे आता था DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के देश की सुरक्षा को खतरा है। और तीसरा आता था 751, सिंपल 751 पंजाबी जी जिन्हों कहते हैं। 751 बोलते हैं। तो मेरे को DIR में अरेस्ट किया था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में। अच्छा, और तीनों के अंदर, मीसा में तो बेल होती नहीं है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में बकायदा नोटिफिकेशन इशू हो गया था अच्छा, कि इनको बेल नहीं दी जाएगी, ओके, ताकि ये जेल में रहें। ऐसे ही 751 वालों को बेल नहीं दे रहे थे। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत मेरे को जेल में रखा गया, और उसमें चार्जशीट फाइल करनी होती है। मेरे खिलाफ चार्जशीट आई, तो जाके अक्टूबर नवंबर में जब वो चार्जशीट आई, तो मिस्टर नागरा थे जुडिशल मैजिस्ट्रेट, वो जेल में जाते थे। तो जब वो जेल में गए, इन्होंने क्या किया था, कैदियों को पेश करना होता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट के यहाँ, और चंडीगढ़ में उस जो कोर्ट थी वो सेक्टर 17 में थी। ओके, तो जब हमको पेश करने लाते थे 14 दिन के बाद, तो हम लोग नारे लगाते थे, बोलते थे, तो लोग सुनते थे, लोगों में होता था कि अच्छा ये तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो फिर इन्होंने, सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हमको प्रिजनर्स को कोर्ट में नहीं लाएंगे, जज ही जेल में जाएगा, वो सुनवाई वहीं करेगा। तो जज साहब भी वहाँ सुप्रीटेंडेंट के कमरे में बैठ के अपनी कोर्ट वहाँ लगा लेते थे। तो जब उनके सामने केस पेश हुआ, चार्ज फ्रेम होने की नौबत आती है, तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग, आप कह रहे हो रैली की, कौन सी रैली, क्या एविडेंस है? जज ने कहा कहाँ है रैली, ये इतने बजे एडमिशन लेने आए, आपने उस वक्त गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया, कहाँ रैली हुई, कौन थे रैली में, कहाँ है फोटो? और जो आदमी कह रहा है आपको इन्फॉर्मर है, वो तो पुलिस आउट है, मैं देखता हूँ रोज़ वो यहीं घूम रहा होता है, अगर नथिंग डूइंग, डिस्चार्ज। उन्होंने कहा कोई केस नहीं बिकता, उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो मेरे को डिस्चार्ज किया, मैं रिलीज़ होके बाहर आ गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग DIR में, 751 में, कुछ जजेस उनको रिलीज़ कर रहे थे। जब बाहर आया तो इस दौरान में राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस हो, RSS, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सब ने मिलकर, जो कांग्रेस के विरोधी थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि हम इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो कहीं 5 कहीं 7 लोग इकट्ठे होते थे, नारे लगाते थे, गिरफ्तारी देते थे। ਇਹ ਬਹੁਤ सारे ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ देश ਚੀਜ਼ में चल ਸੀਗੀ। गया। ਤੁਸੀਂ ABVP ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ CPI ਦੇ ਵੀ कांग्रेस ਆਏ। के लीडर सारे नहीं आए थे,
कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीएम और ये सब विरोध कर रहे थे, सीपीआई समर्थन कर रही थी, लेकिन सीपीएम और ये सबने विरोध किया। तो कांग्रेस की तरफ से जो लोग बाहर आए उनमें श्री चंद्रशेखर शायद उस टाइम, हाँ, अरेस्ट हो गए थे, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामधन और ऐसे 2-3 लोग और थे जिनको मीसा में अरेस्ट किया गया था। उनको किसी को रोहतक जेल में, किसी को दिल्ली जेल में, किसी को बठिंडा जेल में, अलग अलग जेलों में उनको रखा गया था। तो उन्होंने सबने निर्णय किया कि सत्याग्रह शुरू किया जाए। सत्याग्रह शुरू हो गया। तो पार्टी ने मुझे भी कहा कि भी आपको सत्याग्रह करना है चंडीगढ़ में। हाँ, तो मेरी डेट तय हुई 27 जनवरी, जो लास्ट डे था सत्याग्रह का, कि आखिरी जत्था उस दिन जाएगा। तो 27 जनवरी को मैंने पंजाब विश्वविद्यालय में 6 छात्रों के साथ 6 मोर स्टूडेंट्स, हमने वहाँ गिरफ्तारी दी। ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਸੀ? हम क्या करते थे कि सारे इकट्ठे होकर एक जगह पहुंच जाते थे, पोस्टर हमारे पास होते थे। उन दोनों पोस्टर भी सेकुलर स्टाइल होकर आते थे, क्योंकि प्रिंट तो होते नहीं थे, सेकुलर स्टाइल होकर आते थे। वो हम जाके बांटते थे, नारे लगाते थे। और 6 लोग हमने स्टूडेंट सेंटर से शुरू किया। सारे हम घूमे मार्केट में, हॉस्टलों में, घंटा 1.5 घंटा नारे लगाते रहे हम सब जगह। यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगाते रहे, भीड़ इकट्ठी हो गई, मार्केट में आए तो सारी मार्केट इकट्ठी हो गई। तो वहाँ से फिर हमको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके हमको सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ उस रात को पुलिस स्टेशन में ले जाके, क्योंकि मैं जत्थे में लास्ट में आया था, मैं पहले भी गिरफ्तार हुआ था, तो पुलिस वालों को लगा कि ये रिंग लीडर है, सारा आंदोलन पीछे से ये चला रहा था, और ये कहाँ चला गया था रिलीज़ होने के बाद हमको समझ में नहीं आई। फिर वो रात को मुझे CIA स्टाफ होता था सेक्टर 29 में पुलिस का, उन दिनों वहाँ ले गए। वहाँ जाकर हमको बहुत स्टूडेंट लीडर्स ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह टॉर्चर ਕੀਤਾ? मेरे को ज़्यादा टॉर्चर किया। मेरे को उन्होंने क्या किया, वहाँ रात को 11 साढ़े 11 बजे जगा के वहाँ ले गए, और वहाँ ले जाके उन्होंने 3-4 पुलिस के लोग थे। एक पुलिस वाले ने ऐसे मेरी बाजू पकड़ी, यहाँ से ऐसे पकड़ ली, दूसरे ने ऐसे मेरे बाल पकड़े, एक ने मेरी ये बाजू पकड़ी, और यहाँ तांबे की तारें होती हैं, कॉपर की, बहुत पतली वायर, एक इस उंगली पे और एक इस उंगली पे, दोनों पे लगाई, इस उंगली पे, इस पे और इस पे। और वो सामने इलेक्ट्रिक वो था, स्विच था, बोर्ड सा था एक, तो वो उसमें ऐसे टच, ऐसे ऐसे कॉन्टीन्यूसली तो लगाएं तो 50 सेकंड में आदमी मर जाता है। तो ऐसे ऐसे शॉक्स, बिल्कुल जैसे जान निकलती है, जान निकलती थी। वो पूछ रहे थे, बताओ पोस्टर कहाँ छपते हैं, बताओ कौन कौन लीडर हैं, क्या है। मैंने कहा नहीं है, कुछ भी होता है। मैंने कोई जानकारी देने का मतलब ही नहीं था। तो फिर वहाँ के शर्मा नाम के एक इंस्पेक्टर थे, वो हमारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा, मैंने सुना, उन्होंने कहा यार पागल हो गए तुम, क्यों ऐसा करते हो, ये पॉलिटिकल आदमी है, कल को कोई मंत्री MLA मिनिस्टर बन जाएगा, इसको कुछ हो गया यहाँ तो सारी उम्र तुम भुगतोगे, कौन तुम्हें बचाने आएगा, क्यों ऐसी हरकतें करते हो, बंद करो यार, बहुत हो गया, अब छोड़ो। फिर उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा के वो पुलिस स्टेशन में ले आए। अगले दिन इलीगल डिटेंशन सी तोड़ी या गिरफ्तार किया सी? डिटेंशन तो लीगल थी, मैंने गिरफ्तारी दी, मैंने नारे लगाए, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन ये CIA स्टाफ में ले जाना, टॉर्चर करना, दिस वाज टोटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगले दिन मेरे को नागरा साहब की कोर्ट में पेश किया, और पुलिस ने मेरा रिमांड मांगा। और मेरा रात का एक्सपीरियंस था, मेरे सामने था, तो मुझे तो लगा भी अगर रिमांड मिल गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। 23 साल की उम्र, बिजली के मर जाऊंगा मैं। तो उन्होंने, नागरा साहब थे जज, तो उस समय जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे मिस्टर वोरा, उन्होंने फाइल आगे की, बोला क्या कि जी ये लोग हैं, इन्होंने कल हमने अरेस्ट किया यूनिवर्सिटी से, इनका हमको पुलिस रिमांड चाहिए 1 हफ्ते का। इसका पुलिस रिमांड, तो व्हाट फॉर, उन्होंने ऐसे देखी फाइल, कह गया मिस्टर वोरा, दिस मिस्टर सतपाल जैन इज द सेम पर्सन हु इज द स्टूडेंट लीडर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी? तो यस सर। व्हाट पुलिस रिमांड, नो फाइल वो आगे मारी, दीज आर पॉलिटिकल पर्सन्स, नो पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड। नहीं सर, हमको पोस्टर रिकवर करने हैं। वो कहता ना देख लो, चले गए, तो जेल में चला गए। उसके बाद फिर नवंबर-दिसंबर के करीब आकर जब ये लोकसभा इलेक्शन की सुखबहाट शुरू हुई, तो फिर हमको वहाँ से रिलीज़ किया गया। और मुझे याद है, मैं जीतने 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ, हम चुनाव जीते, और जीतने के बाद फिर मैं नागरा साहब के घर जाके उनका धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जजों पे प्रेशर पूरा था, और कुछ जजों में डर भी था
डरे हुए थे जज। कुछ थे जो बोल्ड थे बहुत, जो डर के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैं 2 इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। एक तो नागरा साहब की, जिन्होंने पुलिस के मांगने के बावजूद भी मेरे को जुडिशियल रिमांड भेजा और पहले डिस्चार्ज किया। दूसरे जस्टिस DS तिवातिया, वो हाईकोर्ट के जज थे। वो एक दिन जेल की इंस्पेक्शन करने आए। तो जब वो इंस्पेक्शन करने आए तो जेल सुपरिटेंडेंट ने बाकी सारी बैरकों में उनको घुमा के वापस ले जाने लगे। अब तिवातिया साहब थे, वो सारी बात को समझते थे। तो जब वो वापस जाने लगे कि दैट्स ऑल, उनका मिस्टर शर्मा जेल सुपरिटेंडेंट थे, आर देयर नो पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन दिस जेल? उनका सर यस माय लॉर्ड यस। कहता देन व्हाई हैव यू नॉट टेकन मी टू दैट बैरक, वेयर इज दैट बैरक? सर वो हमने करके, खैर वो लेके आ गए। जल्दबाजी में, दोपहर का टाइम था हमारा, वो दरवाजा ताले तुले खोल के तो लाए। हमने कुर्सियाँ बाहर लॉन में बैरक के अंदर बैठाई, उनको कुर्सी दी, बैठे। तो जस्टिस JV गुप्ता जो बाद में चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के, वो भी हमारे साथ बैरक में थे। तो उन्होंने कहा कि आप चाय लेंगे तिवातिया जी? तो हाँ पीऊँगा। तो हालांकि जेल में जज आया और हमारी चाय पी, बहुत बड़ी बात थी। तो चाय बनाने लगे। तो बीच में से उन्होंने पूछा, तिवातिया का फ़र्ज़ था प्रिजनर्स को चेक करने आए कि इनको कोई परेशानी तो नहीं है। तो मजाक में मेरे को याद है, उन्होंने कहा कैसे हो JV जितेंद्र वीर? उसने कहा सर यहाँ वकील तो बहुत हैं, बस एक जज की ज़रूरत है हमको, अगर जज आ जाए तो हम तो यहीं कोर्ट लगा सकते हैं। हंसे वो, खूब हंसे, मस्का किया। तो बीच में एक सज्जन ने कहा कि सर हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमको दबा के रखते हैं। तो जस्टिस तिवातिया ने जेल में बैठे हुए बैरक में सुपरिटेंडेंट को कहा, बात सुनो, कहता है इनको दबाने की कोशिश मत करना, ये दबने वाले लोग नहीं हैं, अगर दबने वाले होते तो अंदर ही क्यों आते, बाहर ही दब जाते, इसलिए मत दबाने की कोशिश करना है इनको, जो फैसिलिटी मांगते सारी दो, इनको सारा चेक करो। और वो फिर बाद में उनकी ट्रांसफ़र होगी यहाँ से, सरकार ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया था बेंगलोर। जुडिशरी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रही। हाँ, कुछ रहे कुछ झुक गए थे। मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, जज अब नहीं है दुनिया में, रिटायर हो गए थे। उनके यहाँ जिसकी बेल पिटीशन लगती थी, जब हमको शाम को जेल में खबर आती थी कि फ़लाँ वर्कर की पिटीशन बेल की उस जज के लग गई है, तो कहते यार कुछ नहीं, इसके तो कुछ नहीं होना है, तो वो सपोर्ट करते थे इमरजेंसी। ऐसा नहीं तोड़ उनके सरकार के। अडवाणी जी ने मीडिया के बारे में बाद में ये कहा था कि इंदिरा गांधी तो ये चाहती थी कि कुछ लोग झुक जाएं, वो लोग झुकने के बजाय तो लम्बे पड़ गए थे आगे। मीडिया के और जुडिशरी के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने, वाईएस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे उस समय, उन्होंने बाद में कहा था, दोज वर द डेज ऑफ फियर साइकोसिस, कि वो डर के दिन थे, डरावने दिन थे, और जुडिशरी पे उसका असर नजर आता था। लेकिन फिर भी बहुत सारे जजेस थे जिन्होंने स्टैंड किया। हमारे यहाँ से जस्टिस PC जैन की ट्रांसफ़र हुई, जस्टिस ढिल्लों की ट्रांसफ़र हुई, तिवातिया साहब की ट्रांसफ़र हुई, संदेवालिया साहब की ट्रांसफ़र हुई। जो लोग स्टैंड ले रहे थे उनको भुगतना पड़ा, लेकिन लोगों ने स्टैंड लिया। मीडिया सेंसर हो गया, कुछ छप नहीं रहा, कुछ रेडियो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे ਸੀਗੇ ठीक ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ऐसा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उस समय, हमारे पास अंदर ट्रांजिस्टर होते थे, ट्रांजिस्टर तो अलाउड था, ट्रांजिस्टर हम रखते थे अंदर। हाँ। BBC हमारा मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। BBC का बुलेटिन हम सुनते थे, उसमें सारी खबरें आती थी। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहली बार मैंने ये जानकारी दी है किसी चैनल पे, 15 अगस्त 1976 को जब शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर हुआ, मॉर्निंग बांग्लादेश के, तो सुबह BBC न्यूज़ आ गई थी, BBC से न्यूज़ आ गई थी कि शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया है। हमारे एक वर्कर थे जो बाहर BBC सुन रहे थे, हाँ। अर्ली आवर्स की बात थी, तो उन्होंने एकदम आके कहा, वो सुनो, पता लगा क्या हुआ, सुनो न्यूज़, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया बांग्लादेश में। तो इंदिरा गांधी जी ने 15 अगस्त को झंडा लहराने जाना था लाल किले पे, और तभी न्यूज़ आ रही थी कि वो लेट हो गई हैं, वो अभी घर से निकलते हुए रुकी हुई थी थोड़ी देर, 1 घंटा लेट गई थी इंदिरा गांधी जी। तो न्यूज़ आ गई थी वो, और हमें पहले मालूम हो गया, देश को बाद में मालूम हुआ, क्योंकि हमने BBC सुनी थी। दूसरा, जो हफ्ते में एक दिन हमारे रिश्तेदारों को मिलने की अलाउड होती थी 1 घंटे के लिए, वो आते थे, और जो जैसे इतनी जगह ड्यूटी में लोग मिलते थे, एक बंदे के साथ एक CID वाला खड़ा जो होता रिश्तेदार ना ताकि हम जो बात कर रहे हैं, कोल खलो के। हाँ वो सुन ले। हाँ, जो हमारे पास खाने के लिए सामान लेके आते तो उसमें भी वो ऐसे घुमा के देखते थे कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, कोई चिट्ठी पत्री देखते थे तो वो भी पढ़ते थे वो, तो उससे कुछ जानकारियाँ मिल जाती थी कि वहाँ पर हैं,
ये गए हुए हैं, ये क्या हुआ है। और कोड वर्ड्स होते थे। मुझे याद है एक चिट्ठी हमको अंदर आई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आजकल व्यापार में मंदा चल रहा है, भाव में तेजी नहीं है, बड़े ਇਹ ਬੜੀ भैया ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ विदेश ਹੈ। गए हुए हैं। ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ जनसंघ ਔਰ की, ਕੋਡ बल्कि ਵਰਡਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। आपस में ਹਾਂ ਦੱਸੋ किस तरह कोड वर्ड्स थे, बड़े 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 वो चिट्ठी में लिखा था जो ताकि सीआईडी वाले भी पढ़ लें, उनकी समझ ना आए कि आजकल व्यापार में मंदी है, भाव ज़्यादा नहीं है, कम है, बड़े भैया विदेश गए हुए हैं, उनके जल्दी वापस आने की संभावना कम है, दूसरे भैया भी विदेश में हैं, हो सकता है जल्दी वापस आ जाएं, आगे जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब सीआईडी वाले पढ़ते थे कि अच्छा ये तो कोई व्यापारी है, बाहर गया हुआ है, बड़े भैया मतलब जो हमारा ਇਹਦਾ senior ਮਤਲਬ leader ਕੀ है ਸੀ वो ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਸ ਦਾ? अंदर है। मतलब ये था कि जो अपनी पार्टी के बड़े भैया जो सीनियर लीडर हैं अच्छा वो अरेस्ट हो गए हैं, विदेश गए हुए हैं, मतलब जेल में हैं, और जल्दी आने की संभावना नहीं है, मतलब उनकी बेल वगैरह नहीं होगी। दूसरे भैया, छोटे भैया विदेश गए हैं लेकिन उनके जल्दी आने की संभावना है, जब उसमें वो आएंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये पढ़ने वाले की समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, ये कोड वर्ड होते थे। मंदा व्यापार में मंदा है मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट एक्टिविटी स्लो है। मूवमेंट स्लो है, बहुत तेजी से नहीं है, ये होती थी। और फिर वो सारी बातचीत हम करते थे, उनसे जानकारियाँ मिलती थी, बीबीसी के थ्रू हमको न्यूज़ मिलती थी जेल के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बाहर आके मालूम हुआ, ये उस समय मालूम नहीं हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान को अटैक करने की खबर इंदिरा गांधी को मिली थी कि उनके राष्ट्रपति भवन में कुछ लोग घुस गए हैं और उसको मारने के लिए आमदा हैं और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैलकाटा से एक हेलीकॉप्टर भेजा था जिसमें 4 लोग सवार थे और उनको मुजीबुर रहमान के महल में उतरकर मुजीबुर रहमान को हेलीकॉप्टर में बैठाकर दिल्ली ले आना था, कलकत्ता ले आना था। चाइना को उस हेलीकॉप्टर का पता लग गया था, अच्छा तो चाइना ने इसको मार गिराया था। वो 5 लोग मारे गए हेलीकॉप्टर गिराया था हेलीकॉप्टर को, और उसमें से और वो हेलीकॉप्टर किना सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मिसिस गांधी ने भेजा था, ऑन रिकॉर्ड नहीं था वो, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड था। वो आर्मी दा नहीं सी, चॉपर नहीं सी, प्राइवेट सी। जो भी आर्मी का था या क्या था वो उन्होंने भेजा, अच्छा तो वो भेजा, रिकॉर्ड पे नहीं आया वो, तो वो जब लेने गया तो चाइना को पता लगा, चाइना ने मार गिराया। उसके अंदर एक सज्जन यहाँ के हमारे ये मुल्लांपुर साइड वगैरह के भी सज्जन थे जो मारे गए थे उस हेलीकॉप्टर में। बाद में उनका फिर केस किया उन्होंने कि भी वो हमारे को कोई बेनिफिट दो, ये करो, पर वो रिकॉर्ड पे नहीं थी, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से भेजा। और ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ सिर्फ एयरलिफ्ट करने कि ताकि एयरलिफ्ट करके ले आओ, बाकी देखा जाएगा जो होगा। लेकिन उन्होंने, चाइना को पता लग गया, चाइना ने हेलीकॉप्टर गिरा दिया, इतने में मुजीबुर रहमान को उन्होंने मार दिया। तो इससे इंदिरा गांधी डर गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भी कोई हिंदुस्तान में भी ऐसी चीज हो जाए। और ये तो अगर क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश से अनार्की फैल चुकी सी। तानाशाही थी पूरी, हाँ, अगर वहां भी हो गया तो कल को क्या पता लगता है। फिर कहीं वो इलेक्शन की बात सोचने लगी, तो उसके बाद फिर वो मामला जनवरी फरवरी में आया। लेकिन बहुत काले दिन थे, बहुत सारे लोगों की व्यापार बंद हो गया, नौकरियां चली गई, कभी भी किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे, भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हो गया था। भ्रष्टाचारी मांग करते थे कि देखो भ्रष्टाचार के इतने पैसे हम लेते थे पहले, पर अब तो इमरजेंसी लगी हुई है, इसलिए 10% और फालतू देना पड़ेगा। किस चीज से भ्रष्टाचार? हर चीज़ का भ्रष्टाचार, Daily कोई needs काम जो करवाना जरूरत है, कोई एफआईआर लॉन्च करवानी है, कोई बेल करवानी है, कोई सैंपल पकड़ा गया, कोई लड़का पुलिस को पकड़ के ले गए, तो वो सारे उसके लिए भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तानाशाही बढ़ गई थी पुलिस की, किसी को भी पकड़ लेते थे, किसी को भी जेल में डाल देते थे, ना अपील ना दलील ना वकील, कुछ भी नहीं होता था। रिश्तेदार भी मिलने से डरते थे, आने से डरते थे, सगे संबंधी डरते थे आने से कि कहीं हमको भी ना पकड़ ले। लेकिन फिर आगे चल के मुझे याद है चंद्रशेखर जी का, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की तो चंद्रशेखर जी सेक्टर 17 की रैली में आए थे, तो उन्होंने एक बात वहाँ कही थी, उनका देखिए हर जुआरी ये सोचता है कि वो हर जुआ जीतेगा, ये चंद्रशेखर जी के शब्द थे उनका। लेकिन हर जुआरी कोई ना कोई जुआ जब हारता है तो सारे जुआ की उसकी कमाई समाप्त हो जाती है। तो इंदिरा गांधी ने भी ये जुआ खेला है लोकसभा चुनाव करवाने का, ये इस जुआरी का आखिरी दौर है, इसमें वो पिट जाएगी आगे। और फिर वो हारी, उसके बाद हार गई आगे। और फिर तो उस इलेक्शन में जो माहौल था साहब, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं इधर पंजाब में पता नहीं कितनी जनसभाओं में बोलने गया। हाँ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ?
कि जब लोकसभा की घोषणा और हुई, पंजाब च भी हाँ पंजाब में घोषणा हुई, तो मैं उस समय यूथ विंग का, मैंने बताया जयप्रकाश जी की, उसका मैं कन्वीनर था। तो प्रचार के लिए हम निकलने लगे, तो मेरे को याद है धुरी, मलेरकोटला, अबोहर, इस साइड में जाते थे। मैसेज आता था दोपहर को कि आपको रात को धुरी में जनसभा है, आपको जाना है। हम जाते थे वहाँ, 1 घंटे के अनाउंसमेंट पे 5,000 लोग, 4,000 लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर चलो जी हमारे यहाँ भी चलो जी, हमारे गांव में भी चलो जी। टोटल एटमॉस्फेयर इंदिरा गांधी के खिलाफ था। एम्प्लॉय भी, कर्मचारी भी, दुकानदार भी, स्टूडेंट भी, सब खिलाफ थे। जो ही लोगों को खुलने का मौका मिला, सब लोग खुल के आने लग गए थे। 1-1 घंटे के नोटिस पे 5-5, 7-7 हज़ार की रैलियाँ होती थी। मलेरकोटले का मुझे याद है, हम रात को 11 बजे पहुँचे थे वहाँ से, शायद नाभा से या कहाँ से। 5-5.5 हज़ार लोग अनाज मंडी में हमारा इंतजार कर रहे थे, सारे उस जगह। डॉक्टर बलदेव प्रकाश, बादल साहब, ये सब के सब जहाँ जाते थे लाखों की तादाद में लोग सुनने के लिए आ रहे थे। और ये क्लियर हो गया था कि इंदिरा बहुत बुरी तरह से हारेगी, और वो हारी। ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ऐसा अकाली दल ने अलग से अपना मोर्चा लगाया था। बाकी पार्टियों ने, कांग्रेस हो, जनसंघ, समाज, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने अलग से अपना संघर्ष किया था। अकाली दल ने लगातार पंजाब में एमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। उनका एक जत्था रोज कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देता था। 25-30 लोग उसमें आते थे, नारे लगाते थे, गिरफ्तार हो जाते थे। और मरहूम प्रकाश सिंह बादल लीड बादल कर रहे साहब, थे। टोड़ा साहब, कभी कोई कभी कोई कभी कोई नेता जो भी थे वो लगातार चलते रहे। रोजाना उनका जत्था जाता था। एक जत्था उनका 30 लोगों का, जिसने चंडीगढ़ में गिरफ्तारी दी थी, वो भी हमारे साथ आकर 1 महीना रहा था चंडीगढ़ की जेल में। कौन कौन से? कोई प्रोमिनेंट बहुत नहीं था, लेकिन साधारण वर्कर थे। कोई लगभग 30 के करीब वो वर्कर थे जो 1 महीना हमारे साथ उसी जेल में रहे थे, हमारे साथ आके। तो लगातार अकाली दल ने संघर्ष किया। और एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, देखिए अत्याचार तो सब जगह हुए, पंजाब में भी हुए, हरियाणा में भी हुए, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने थोड़ी देर के बाद, पंजाब में अत्याचार उतने नहीं हुए जितने बाकी जगह हो रहे थे, उन्होंने थोड़ा ये मोमेंट चलने दी। लोग जाते थे, गिरफ्तारी देते थे, होते थे। 1976 में मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, मैं सारी स्टेट में घूम के आया। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ नहीं ਕੀਤੀ। की, उनने ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ सख्ती ਹੋ नहीं ਤੁਸੀਂ। की थी। हाँ, पंजाब में उतनी सख्ती नहीं हुई जितनी बाकी जगह हो रही थी, उतनी नहीं हो रही थी। और अकालियों पे तो लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि अकाली दल आते थे, वो कहते ठीक है गिरफ्तारी दें, इनको ले जाओ जेल में रखो, बंद करो। अकाली दल ने पूरा संघर्ष किया उसके खिलाफ, पूरी लड़ाई लड़ी अकाली दल ने। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कुल मिला के 25-30 हज़ार के करीब अकालियों के वर्कर जेल में गए थे आके। और फिर जब छूटे जेल से, और फिर तो जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो तो माहौल देखने लायक था। मैंने किसी लोकसभा चुनाव में वो माहौल नहीं देखा। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ जनसभा, लोग आके बोलते थे जी देखो यहाँ अभी तक पोस्टर नहीं पहुंचे जी, देखो जी वहाँ अभी तक कोई जनसभा नहीं हुई है जी, आप हमारे मोहल्ले में भी मीटिंग करो जी, आप यहाँ करो जी। जो लीडर चला गया, छोटा बड़ा, लोग सुनने आते थे, ताड़ियां मारते थे। और ये क्लियर हो गया था कि इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से हारेगी, बहुत बुरी तरह से। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਮਤਲਬ हर शख्स इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया। खिलाफ सी, कर्मचारी भी, व्यापारी भी, सबको लगता था कि भी नहीं ये राज जाना चाहिए। दुखी थे लोग। जो ही वो गुस्सा, जैसे फाटक खुलता है तो एकदम से हजूम बाहर आता है, ऐसे गुस्सा लोगों का है। और फिर मुझे याद है जब ये पोलिंग थी तो चंडीगढ़ से कृष्णकांत जी को टिकट मिला था। मैं उनके साथ बहुत गंभीरता से चुनाव में काम कर रहा था। तो हमारी काउंटिंग हो गई थी शाम को कुछ 6 बजे कंप्लीट, और उनको डिक्लेयर कर दिया इलेक्टेड। जगन्नाथ कौशल को हरा के वो जीत गए थे, तो शायद सतपाल कपूर को हराया था। तो जब हम जुलूस में आ रहे थे तो एक ट्रक्स में हम खड़े हुए थे गाड़ी में, कृष्णकांत जी के साथ मैं खड़ा था, बाकी भीड़ थी। किसी ने कृष्णकांत जी को आकर कहा, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, कि इंदिरा गांधी हार गई। क्या बकवास करते हो, क्या बोलते हो, मत बोलो ऐसी बात। वो अपनी किस्म के थे, विश्वास नहीं हुआ उनको। उन्होंने मेरे को कहा सतपाल ज़रा चेक करो, पता तो करो नीचे क्या है। मैंने कहा अच्छा जी। तो हम सेक्टर 27 मार्केट के करीब पहुंच चुके थे। मैं फिर नीचे उतर के गया। श्याम सुंदर गुप्ता हमारे एक जनसंघ के वर्कर थे, उनकी दुकान पे गया। उन दिनों 7:45 बजे एक न्यूज़ बुलेटिन आता था हिंदी में, नेशनल ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो का टीवी वगैरह तो नहीं होते थे उन दिनों। तो वो मैंने न्यूज़ लगाई, जब सुनी तो उसमें उसने खबर दी कि रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी वहाँ से अमेठी से चुनाव हार रहे हैं। तो लोग लगभग चले गए थे वो।
तो मैंने फिर आके मैं ट्रक पे चढ़ा, जाके मैंने कृष्णकांत जी को, हाँ सतपाल, मैंने कहा सर वो खबर ठीक है, इंदिरा गांधी चुनाव हार रही हैं, संजय भी हार रहे हैं। अच्छा, दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ये कृष्णकांत जी के मुंह से शब्द निकले, दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो मतलब विश्वास नहीं होता था कि वो हार रही हैं, हारी सॉरी हार गए थे। लोग कहा करते थे, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰदिरा गांधी ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ। और उस इलेक्शन में अमृतसर से लेके पटना तक, कलकत्ता तक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सारी इस इंडिया में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, पूरी तरह से हारे थे आगे। अब लोगों को मौका मिला। मुझे याद है प्रकाश सिंह बादल जब रिलीज होके आए, टोडा साहब रिलीज होके आए चुनाव के दिनों में, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ हाँ जी, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ याद हैगी है? नहीं उनको तो गिरफ्तार करके जेल में रखा, जेल में रहते थे, इकट्ठे करते थे। जब चुनाव की घोषणा हो गई और उनको रिलीज किया गया तो चंडीगढ़ पहुंचे, यहाँ आए 77 ਦੇ चुनाव ਲਈ। उत्तर चुनाव से पहले इमरजेंसी अभी लगी हुई थी, तो बादल साहब की सेहत ठीक नहीं थी, टोडा साहब की भी सेहत को बहुत अच्छी नहीं थी, जेलों में थे। तो बादल साहब को फ़ोन आने शुरू हो गए, उधर मुक्तसर फरीदकोट की तरफ खबर फैल गई कि बादल साहब आ रहे हैं। लोग सड़कों पे आके बैठ गए, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ अभी ਸਿੰਘ प्रोग्राम भी ਬਾਦਲ नहीं ਦੇ बना। ਲਈ हाँ, तो यहाँ फिर बादल साहब को डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा ध्यान से चलो, आपकी सेहत ठीक नहीं है और आप इधर हो। तो मुझे याद है बादल साहब ने कहा वो काका जी वो साल पहले मर जाएंगे, कोई गल नहीं, साल पहला मर जाएंगे, कोई गल नहीं भाई, लोग उत्थे बैठे सड़कों पर इंतजार कर रहे ने, हम जाना तो पेगा ही, मैनू आओ चलिए। तो टोडा साहब और वो निकले यहाँ से, तो ये वाया पटियाला इधर घूमते हुए जब वो गए साहब, सड़कों पे जो जन समूह आया उनको रिसीव करने के लिए, अच्छा और साहब रिमार्केबल, और वो टॉनिक साबित हुआ उनके लिए, उनको लगा कि नहीं वी विल मेक थ्रू। कांग्रेस साफ होगी। हाँ, फिर फैसला ये हुआ जब इलेक्शन लड़ना था तो कौन इलेक्शन लड़े कौन ना लड़े। कुछ लोगों का सुझाव था चुनाव ना लड़ो, पर फिर कहा कि नहीं लड़े। तो फिर इन्होंने फैसला किया, अकाली दल को सलाह दी गई जनसंघ की लीडरशिप की तरफ से, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, कि भाई इस चुनाव में आप सीनियर लीडरों को उतारो, वो इलेक्शन लड़े। तो फिर टोडा साहब लड़े शायद पटियाला से, बादल साहब लड़े फरीदकोट से, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल लड़े शायद फरीदकोट से, ऐसे सारी सीनियर लीडरशिप चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी सारी। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰदिरा गांधी ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਟਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਟਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੇਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਆਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। तो उसके कारण से एमरजेंसी का रिएक्शन बहुत होया क्योंकि ना तो एग्रीकल्चरिस्ट तानाशाही बर्दाश्त करता है, ना दुकानदार करता है, और उस वेले दोनों की आपस में सांझ जी हैगी सी, इकट्ठे सी, कोई कम्यूनल माहौल पंजाब दे विच बिल्कुल नहीं सी। हाँ। तो जिसका रिजल्ट ये सी भी अगर 5 मुंडे पिंडां दे जा रहे हैं तो 2 शहर वाले भी जाते सी, चलो लाला जी तुहाडा मुंडा भी चल रहा, साडा काका भी जा रहा है। तो वो एक माहौल आ गया और रिएक्शन था क्योंकि पंजाब ने कभी भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं की है। सिख इतिहास भी, पंजाबी इतिहास भी, जब भी मैंने कहा ना जबे बाण लागे तबे रोज जागे, तो वो संघर्ष की ताकत थी। ज्ञानी जैल सिंह जी को इस बात का एहसास था, इसलिए कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि भी मत करो, जितना इनको टॉर्चर करोगे उतना रिएक्ट होगा। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਇੰदिरा गांधी ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋ ਜੇ।
और पंजाब वर्सेस इंदिरा गांधी भी वो जानते थे कि पंजाबियों को दबाना सरल नहीं है। ये पंजाबी कौम ऐसी है जो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बोलते ना, प्यार से चाहे गुड़ की पेली ले लो, जबरदस्ती तो गन्ने दी पूरी भी नहीं ले सकते। तो वो उस माहौल में वो चला। पंजाब का कुल वातावरण खिलाफ था और पंजाब की 13 सीटें कांग्रेस आ रही थी लोकसभा की, बिल्कुल 13 सीटें। डॉक्टर बलदेव प्रकाश अमृतसर से लड़े, यज्ञदत्त शर्मा गुरदासपुर से लड़े, हुशियारपुर से वो थे चौधरी बलबीर सिंह शायद लड़े, सारी की सारी सीटें जीत कर आए थे। पंजाब का बहुत बड़ा योगदान था और शायद हिंदुस्तान भर में पंजाब ही ऐसी एक स्टेट थी जिसमें लगातार रोजाना सत्याग्रह होता रहा, डेली सत्याग्रह होता था। 20-25 वर्कर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देते थे। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इमरजेंसी के खिलाफ हटाने में जिन राज्यों की रही उनमें पंजाब भी शामिल था। पंजाब भी शामिल सी। आखिरी एक दो सवाल, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? देखो, ये बात थी कि जो ये नसबंदी का कार्यक्रम था ये संजय गांधी का प्रोग्राम था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन दिनों अपना 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था और संजय गांधी ने 4 सूत्री कार्यक्रम दिया था। लोग तो मजाक में उसको 420 बोला करते थे। अच्छा। तो खैर उसमें नसबंदी थी। पंजाब में भी नसबंदी हुई है, पर पंजाब के अंदर कोई बहुत जबरदस्त हुई हो मेरी जानकारी में उस समय नहीं आई थी। थोड़ी बहुत पंजाब दे विच कहीं जिक्र हुआ होगा, हाँ। ज्यादा नहीं सुनी थी। हरियाणा में बहुत हुई थी। हरियाणा में तो मेरे को याद है, हमारे एक मित्र थे बरनाला से, अब तो उनकी निधन हो चुका है, बहुत देर पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। वो किसी बस में दिल्ली जा रहे थे तो करनाल में वो बस हॉस्पिटल में ले गए। अच्छा। हाँ, और ज़बरदस्ती सबकी नसबंदी की गई। लोग संजय गांधी को जाकर बताते थे कांग्रेसी कि आज हमने इतने लोगों की नसबंदी मेरे राज्य में हो गई है, मेरे राज्य कांग्रेसी लीडर कांग्रेस के लीडर। अच्छा। मुझे याद है महेंद्र सिंह गिल जो उस समय कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर थे, उन्होंने खुद अपनी नसबंदी करवाई थी और उसकी फ़ोटो अखबारों में छपवाई। महेंद्र सिंह गिल ने? हाँ, महेंद्र सिंह गिल ने। अच्छा। और कि भी देखो हमने नसबंदी करवाई है उसके कहने पे। वो एमपी बने थे शायद। हाँ, हार गए थे वो 77 में, वहाँ से हारे थे फिरोजपुर से। बाद में फिर वो कांग्रेस में प्रधान बने। तो ये जो उस समय का माहौल ये तो था, जोर जबरदस्ती नसबंदी के नाम बहुत हुई। हरियाणा की तो बहुत ज़्यादा उदाहरण थी। ਕੀ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦੋ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰੋਕਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? क्यों संजय गांधी का मत ये था कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कोई स्कीमें नहीं चल पाएंगी, ये उनका सोचना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका ये है कि लोगों की नसबंदी शुरू करो ताकि बच्चे कम पैदा हों और पॉपुलेशन देश की बढ़ ना पाए। ये उनका आइडिया था और उनको खुश करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री मंत्री करवाते थे और रोज उनको बताते थे कि मेरे राज में इतने हो गए, मेरे राज में इतने हो गए। वो जोर जबरदस्ती में चला गया था, जोर जबरदस्ती में। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਟੀਪੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਈਵਨ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ बहुत ਜਾਣਕਾਰੀ ही ਹੈ? झूठा बुनियाद वाहिद, मैं कहूँ जो भी शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके लिए वो होना चाहिए। मैं आरएसएस का आदमी था, मैं जेल में रहा। मैं इसलिए पूछा। पंजाब में मित्र सेन जी आरएसएस के थे, लाजपत राय जी, अपने जो नेता पंजाब के अंदर थे जेल में पकड़े गए, सारे जेलों में रहे और सारा अंडरग्राउंड मूवमेंट तो आरएसएस के लोगों ने चलाया। उस समय नारायण दास जी, विश्वनाथ जी, मेरे को मालूम है सरदार चरणजीव सिंह जी, हम तो जब जाते थे मिलते थे अंडरग्राउंड, जो पहले आमतौर पर एक कुर्ता पजामा पहना करते थे, उन दिनों वो कपड़े बदल कर, भेष बदल कर सारा संघर्ष चल रहे थे। नानाजी देशमुख जेल में रहे, बाला साहब देवरस जेल में रहे, सारी संघ की लीडरशिप जेल में थी। क्या बात कर रहे हैं वो? बिल्कुल ये वाहियात बात है। आंदोलन ही आरएसएस के लोगों ने मुख्य रूप से चलाया और ये पहली बार हुआ कि आरएसएस के लीडर्स भी और मुस्लिम लीग के लीडर्स भी, क्योंकि जेलों में इकट्ठे थे दोनों, पहले आपस में
एक राय नहीं होती थी। साल साल 1.5 साल जो जेलों में रहे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला। अब दोनों ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ अपोजिशन के हाँ। लोग भी एक दूसरे से मिले। अपोजिशन के लीडरों में तो फिर उतना नहीं था। आरएसएस और मुस्लिम अवामी मुस्लिम लीग या पार्टी, उनकी तो आपस में यूनियन बहुत कम होती थी। दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सीखा। जितनी जेल में जो गए थे लोग उन दिनों में, अगर आप फिगर मंगवाएं, सबसे ज्यादा नंबर आरएसएस और जनसंघ के वर्कर्स का था, सबसे ज्यादा। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੇਲਜੋਲ अच्छे, ਵਧਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ बहुत ਦਾ हुआ। ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, बहुत किस हुआ। तरह ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? अभी मैं आज भी किसी अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी मुस्लिम लीडर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमको ज़बरदस्ती जब जेल में भेजा तब हमको आरएसएस को और हमको एक दूसरे को समझने का मौका मिला। हमारी बातचीत हुई, इकट्ठे हुए। मैं जिस जेल में था उसमें अकाली दल के वर्कर, कांग्रेसों के, लखनपाल, आनंद मार्ग के ऐसे लोग थे। ऐसे दिल्ली की जेल में सारे लोग एक ही उसमें जेल में इकट्ठे रहते थे। पंजाब की जेलों ਕੋਈ में ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ? साझे प्रोग्राम तो पॉसिबल ही नहीं थे ना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ गिरफ्तारी ਕਰਨਾ हो गई ਇੱਕ 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 ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੇਮ फ्रंट ਤੇ ਆ ਕੇ आरएसएस और मुस्लिम लीग किते इकट्ठे मैं नजर आए? नहीं, इकट्ठे क्यों किया हो ये मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन सत्याग्रह हो रहा है तो आरएसएस के वर्कर भी सत्याग्रह करते थे, कहीं मुस्लिम लीग वाले करते थे, कहीं कांग्रेस वाले करते थे, और सारे इकट्ठे मिलकर फिर वो जेल में आकर तो इकट्ठे ही रहते थे। हम चंडीगढ़ जेल में रहे तो एक ही बैरक में थे सारे, इसलिए आरएसएस का पूरा कंट्रीब्यूशन था। जो ये बात कहता है मुस्लिम सत्य लीग नहीं और है। आरएसएस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। साझे तो संभव ही नहीं थे ना। जब आप जेल में हैं, इमरजेंसी लगी हुई है, तो प्रोग्राम साझे कहाँ से दे दोगे? क्योंकि आप अंदर ही तो आपकी बात हो रही ਨਹੀਂ है ਨਹੀਂ, ना। ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरी जानकारी में नहीं है, हम्म। ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन सब ने, मुस्लिम लीडरों ने भी जिन्होंने अपोज किया था, वो जेलों में रहे, एक दूसरे को संपर्क में आए, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। आरएसएस की सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ, किसी संस्था की भूमिका आंदोलन में थी इमरजेंसी के खिलाफ, तो वो आरएसएस की थी। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ बहुत ਸਟੂਡੈਂਟ असर। लीडर्स ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए थे। आपने लालू प्रसाद जी का जिक्र किया। 74 में आंदोलन से पहले लालू प्रसाद यहाँ चंडीगढ़ आए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वो भी आए थे, मेरे साथ रहे, घंटा हमने गपशप की। जयप्रकाश नारायण जी मोगा में आए थे एक रैली में। मोगा, ਮੋਗੇ। हाँ, मोगा की रैली में थी, बहुत कामयाब रैली थी, सारे पंजाब से लोग उसमें आए थे। फिर जयप्रकाश नारायण कुछ दिन पहले, ये इमरजेंसी से पहले लुधियाना में आए थे। बहुत बड़ी रैली लुधियाना में हुई थी, सारे पंजाब के स्टूडेंट्स आए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से हम 6 बसें लेकर गए थे उस रैली में, उस रैली के अंदर। फिर उन्होंने स्टूडेंट लीडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जयप्रकाश नारायण ਸਿੱਖ जी, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, सिख ਸਪੋਰट ਕਰਦੇ स्टूडेंट फेडरेशन पूरी सपोर्ट कर रही थी। ਹਾਂ, ਇਹ Six- ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? सारे पंजाब के सिख स्टूडेंट फेडरेशन, सीपीएम की जो ऑल इंडिया, मुझे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो उनकी स्टूडेंट विंग था, एबीवीपी जो जनसंघ के साथ जुड़े हुए थे वो, और जो पंजाब में प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो करती थी। सिर्फ सीपीआई से जुड़ी संगठनें वो इमरजेंसी का सपोर्ट कर रही थी, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ। बाकी सब पार्टियां कर रही थी, और रैली में सब आते थे। और जयप्रकाश जी कहते थे कि मेरी रैली में सब आए। ये उसमें बादल साहब भी होते थे, उसमें टोड़ा जी भी होते थे, उसमें ਇਹੀ बल्देव ਪੁੱਛਣਾ, प्रकाश भी ਇਹਨਾਂ होते थे। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ बिल्कुल थी, ਸੀਗੇ? बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। जब वो लुधियाना की रैली हुई और मोगा की रैली हुई, इसमें ये सारे नेता मौजूद थे। बलदेव प्रकाश भी थे, साथ ही रूपलाल की स्पीच मेरे को याद है, वो भी उस रैली में बोले थे, वहाँ पे मोगा में और लुधियाना में। सारी अपोजिशन के लीडर इकट्ठे होकर उनके साथ आते थे, याद है मेरे को बिल्कुल। और बड़ा बड़ा अच्छा असर था आखिर दे जयप्रकाश जी विच का। दो बल्कि शब्द, जयप्रकाश नारायण जी की लुधियाना रैली का, मैं उस रैली में था, पहला सेंटेंस मेरे को याद है। उन्होंने पहला सेंटेंस ये कहा था कि इतनी अपार भीड़ देखकर, वो हिंदी में बोलते थे, मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा मन कांप रहा है, जितनी आपकी मेरे से उम्मीदें हैं, क्या मैं उन उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? मैं भावुक हूँ कि इतनी तादाद में लोग वहाँ मिलने आए हैं। याद है मेरे। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? परिवारवाद नहीं चलेगा, अहंकारवाद नहीं चलेगा, मनमर्जी नहीं चलेगी, लोकतंत्र है,
संविधान के अनुसार सरकार चलेगी, संविधान के अनुसार पार्टी चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो भी नेता परिवारवाद करना चाहेगा, तानाशाही करना चाहेगा, ज़बरदस्ती करना चाहेगा, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका डाउनफॉल होगा ही होगा, वो नहीं बच सकता है। जो इंदिरा जी का हाल हुआ, यही इंदिरा गांधी जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿयलाइज ਕੀਤਾ नहीं 1900 करते। अभी जब 50 वर्ष होने के कार्यक्रमों में जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, मैंने उस दिन कहा था, मैं उस बात को दोहराता हूँ। अच्छा होता कि अगर कांग्रेस 50 वर्ष के बाद प्रोटेस्ट करने की बजाय पश्चाताप करती, ये कहती कि ठीक है गलती सबसे होती है, हो गई गलती, गलती हो गई, लेकिन ये मुल्क तो माफ़ नहीं करता। इसने जनरल डायर को भी माफ़ नहीं किया, इंग्लैंड में जाके उससे बदला लिया था। कभी भी कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता तानाशाही, पंजाबी ब्लू तो स्टार बिल्कुल नहीं माफ करते, नहीं होया। नहीं माफ़ हुआ। मैं कहता हूँ कि आप अगर ये कहते कि हमसे गलती हो गई थी, हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद भी हमने नहीं किया, तो लोग माफ़ कर देते। लेकिन जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी सहमति उनके साथ थी। आपकी भी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक आर्टिकल लिखा था इमरजेंसी हटने के बाद, जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, बहुत मशहूर हुआ था वो आर्टिकल, जिसमें उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी लगी तो जो लोग, इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, लेकिन जो उस समय खामोश रहे थे वो भी बराबर के दोषी थे। साइलेंट सपोर्टर। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के उदाहरण देकर कहा था कि द्रौपदी के चीरहरण में, क्योंकि भीष्म पितामह खामोश रहे थे, इसलिए वो और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तो वो भी बराबर के दोषी थे, वो दोष से बच नहीं सकते। और भीष्म पितामह चुप रह के दोषी थे। और भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे थे, जब भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह अब आप जा रहे हो, आप इनको सीख दे के जाओ, क्या क्या आपसे गलतियां हुई हैं। तो बहुत लंबा संवाद है वो। एक गलती उन्होंने ये कही कि एक मेरे से गलती ये भी हुई थी कि मुझे द्रौपदी के चीरहरण में बोलना चाहिए था, मैं चुप रहा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, जो इमरजेंसी के दौरान चुप रहे या जो आज भी चुप रहकर उसको समर्थन दे रहे हैं, वो भी उतने ही दोषी माने जाएंगे जितना इमरजेंसी लगाने वाले थे। करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, वो तो भुगतना पड़ेगा। राणा राव न को रहो, रंग न तुंग फकीर, वारी आपो आपनी कोई ना बनने तीर। तो ये इसे जो करेंगे सो भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।